Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Manisa, and in today's video we are going to solve a long question, and this is from the performance management F5 paper. So all of those who are struggling to solve this valid company, which has been asked in June 2014. So here is a video for you. I hope after watching this video you will feel very easy to solve this kind of question. Okay, so let's start the question. Before reading the scenario, let's move to our requirement. So requirement first is using the data provided for the full validates and mini validates, calculate the total sales mix contribution variance, and it's for the 4 marks. Then next we have total sales quantity contribution variance, and again it's for the 4 marks. So all together they have simply asked to calculate both of these variance, and all together it's for the 8 marks. The next requirement is briefly describe the sales mix contribution variance and the sales quantity contribution variance. So they are just want you to describe these two variances, and it's for the 2 marks, which is very easy to grab. Then next we have next requirement, third one. Discuss the sales performance of the business for the period, taking into account your calculation from the part A and the information provided in the scenario, and it's for the 10 marks. So altogether the whole question is for 20 marks. So okay, all right. So let's read the scenario, then we will again come back to the requirement and then find out the figure which is required to perform calculations. Okay. Okay, the question is Valet Company, and Valet Company is a car valeting cleaning company. It operates in the country of Australia, which has been badly affected by global financial crisis. So there is some crisis going over that country. It's a global one, basically not only to that particular. So like Corona, it has been affected the economic of all the country, right? Similarly, there is some crisis going over the global, and this country has been affected by that crisis as well. Petrol and the food price have increased substantially in the last year, and the average disposal household income has decreased by 30%. So what the this sentence means petrol and food price, which is very basics, right? So its price is increasing year by year. I mean, from last year it has been increased substantially, and average disposal household income has also been decreased by 30%, and this might be due to the crisis. See what happened now, during the corona time, you might be faced this kind of situation. People were not spending their money in the expensive or luxury or entertainment kind of things. They are just saving their money for their basic needs and their medication and whatever which is very necessary at that particular point of time. Similarly, as mentioned in the question, that there were crises going over the global, and it's obvious that the disposal of household income will be decreased. People will try to save their money for the basic or other necessity items, right? So recently study have shown that average car owner keep their car for 5 years before replacing it, rather than 3 years as was previously the case. That means uh, previously, before this crisis, people used to replace their cars in 3 years time. So they used to purchase those cars 3 years times. Now they don't do replacement in the 3 years. Instead of that, they are replacing their cars in the 5 years, right? Figure over the recent year also show that car sales in Australia are declining, while its business car for repairs is also increased. So however, in recent years, the people are buying less cars, and they are more focused to repair their cars, right? So
Obviously this could lead to increase in the sales of valid company, because cleaning is somehow also the part of the repair, right? So valid company offer two types of valid. One is the full valid and other is the mini valid. Full valid is an extensive cleaning for the vehicles inside as well as outside, whereas a mini valid is a more basic clean of vehicles. Until recently, four similar business operated in the valid company a local area, but one of these closed down 3 months ago after a serious fire on its premises. So basically, there were four players for the valid company. Okay, so there were four players, and out of which one have been gone out. Why? Because due to the fires catch on its premises, right? So that means one competitor is out of the market. So their customer will be shifted to the other three, right? Okay. Then next we have information regarding the valid company charges 50 for each full valid and 30 for the each mini valid, and this price never changes. So obviously this is the selling price that valid company is charging. Okay. Their budgeted and actual figure for the last year were shown below. Okay, so this one is the budgeted figure and this one is the actual, and they have provided all the figure like how much they have done sales, how much revenue they have earned, their variable cost, staff wages, everything, right? All right. The budgeted contribution to sales ratio for two types of valid are 44.6% and for full valids and 55% for the mini values. So all right, we are done with reading the scenario, picking up the figures and things. We have just to have an overview what the things are going on in the valid company, right? Now let's move to our requirement and we will do the first calculation, which is the requirement A. I'm saying after watching this video आपको ये क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं लगेगा. इस काइंड का क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे विद इन ए फ्यू मिनट्स. देखो आप कैलकुलेशन का पार्ट, जस्ट बी फोकस एंड स्टे विद दिस वीडियो टिल एंड. ओके, सो फर्स्ट में क्या पूछा हमसे उन्होंने, क्या कैलकुलेट करने के लिए, just a second. Okay, so total sales mix contribution variance, total sales quantity contribution variance. ठीक है, so यहाँ पे दो चीज कैलकुलेट करना है हम लोग को, सेल्स मिक्स एंड कंट्रीब्यूशन वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस. एक चीज, सेल्स मिक्स से पहले हम लोग थोड़ा रिकैप करते हैं. हम लोग सेल्स वॉल्यूम को ब्रेक डाउन कर रहे थे, राइट? सेल्स वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या था? जस्ट सेकंड में चार्जर लगा के आती हूँ. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, सेल्स वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग दिमाग में सोच रहे होगे क्या था, एएसपी, बीएसपी, समथिंग ऐसा कुछ रिकॉल कर रहे होगे. बट नाउ आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है. ये चार्ट बस दिमाग में याद रखो, आपके सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको आते जाएंगे. ऑलराइट, तो सेल्स वॉल्यूम के लिए सबसे पहले जस्ट सेकेंड. ओके ओके, तो सेल्स वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स वॉल्यूम में हम लोग एक्चुअल कितना सोल्ड किया, बजटेड कितना सोल्ड किया, उसका डिफरेंस. सो नाउ AQ सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन. मैं पहले फॉर्मूला समझाती हूँ, उसके बाद आपको कैलकुलेशन का पार्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. ओके, सो देन यहाँ पे अब BQ सोल्ड कर देंगे, बजटेड के अकॉर्डिंग कितना क्वांटिटी हम लोगों ने रखा था. सपोज इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया A एंड इसको B. ऑलराइट, ओके, सो ये A माइनस B क्या होता था हमारा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, राइट? तो इसको ये कैसे निकालते हैं हम लोग, A माइनस B करके. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी सेल्स वॉल्यूम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज द सेल्स मिक्स एंड द सेल्स क्वांटिटी. ठीक है, वो कैसे, आई विल सी. मैं इसको कॉपी करूंगी एंड वापस से यहाँ पेस्ट करूंगी. ऑलराइट, और एक और यहाँ पे चीज ऐड करूंगी.
तो यहाँ पे अब हम लोग स्टैंडर्ड मार्जिन इनटू सेल्स मिक्स, ठीक है. लेट मी शो द फुल पिक्चर. ठीक है, अब दिख रहा होगा, राइट? ओके. ये ऊपर से मैंने कॉपी पेस्ट किया, ऊपर में भी था ये, एंड ये बस मैंने ऐड किया स्टैंडर्ड मार्जिन इनटू द सेल्स मिक्स. हालांकि स्टैंडर्ड मार्जिन तीनों में है, ठीक है. सो बीच में क्या आ गया? सेल्स मिक्स. अब इसको मैं सी कर देती हूँ, ये बीच वाले को. ओके, सो ए माइनस बी तो हमारा सेल्स वॉल्यूम ही था, राइट? सो सेल्स वॉल्यूम इज द सेम एज वी हैव डन अबव, बट अब जो, एक सेकेंड, हाँ, एक आएगा हमारा a माइनस सी एंड द नेक्स्ट वन इज c माइनस b. ठीक है, जो a माइनस सी है, दिस इज आवर सेल्स मिक्स वेरिएंस. दिस इज सेल्स मिक्स वेरिएंस. एंड जो c माइनस b है, दैट इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. ऑलराइट. अब एक और चीज समझो, ये स्टैंडर्ड मार्जिन जो बार बार मैं लिख रही हूँ, व्हाट इज दिस? सो ये अब आपका डिपेंड करता है, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हो और मार्जिनल कॉस्टिंग. अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हो, इन दैट केस दिस स्टैंडर्ड मार्जिन विल बी आवर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, बट अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हो, इन दैट केस इट विल बी योर स्टैंडर्ड प्रॉफिट. ठीक है. अब क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है कि मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, बट उन्होंने एक क्लू छोड़ा है. अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, दे आर सेइंग सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस. So it's very clear that we are following marginal costing system. ठीक है यहाँ तक. अब आते हैं कैलकुलेशन के पार्ट में. So what we have to do is, ये तो फॉर्मूला का पार्ट था, मैंने जस्ट समझाया आपको. मैं इसको हाइड कर देती हूँ जस्ट बेटा. ओके, ठीक है. सो हम लोग वैल्यू पेस्ट करते हैं. अब इसके लिए वैल्यू कहां से आएगा क्वेश्चन में? ये टेबल. सिंपली वी हैव टू फॉलो दिस टेबल. ओके. एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, अब हमारे पास दो प्रोडक्ट है ना, सो यहाँ पे एक चीज ऐड, कॉलम ऐड करेंगे एंड वी विल हैव वैलिड. एक है हमारे पास फुल, एक है हमारे पास मिनी. ऑलराइट. ओके, सो फुल में एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना है? फुल में एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज 4000. सिमिलरली इन द मिनी इट्स 3980. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट, एक सेकेंड इसको छोटा करती हूँ थोड़ा, बाकी का दिखेगा. या अब दिख रहा है. ओके, अभी स्टैंडर्ड मार्जिन रहने देती हूँ, अभी उस पर भी आऊंगी. नाउ सेल्स मिक्स. अब सेल्स मिक्स क्या है ना, हमको पहले स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन फिगर आउट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माने मैं बताती हूँ, ये बजटेड है, एक होता है हमारा एक्चुअल. ठीक है, एक्चुअल. तो हमारे पास दो वैलिड है, राइट? ये वर्किंग डाल देती हूँ 1. तो वैलिड हमारे पास क्या है? एक फुल है, एक मिनी है. सो बजटेड के अकॉर्डिंग कितना सेल करना था? फुल 3600. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? हियर यू कैन फाइंड दिस इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट 2000 फॉर द मिनी वन. एक्चुअल के लिए कितना था? अगेन 4000 एंड 3980 फॉर द मिनी. टोटल कितना हुआ? ऑलराइट, सो यू कैन सी. अब हमको परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा. सो बजटेड के अकॉर्डिंग इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं. ओके, सो बजटेड के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज हमको सेल करना था फुल आउट ऑफ 5600? ओके, ठीक है, 64%. सिमिलरली हमारा मिनी 36%. ठीक है.
इसके लिए भी निकाल देती हूँ मैं, देन आई विल कम बैक टू द टॉपिक। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, हालांकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना, समझाने के लिए कर रही हूँ। सो इसकी छोटी सी यहाँ पे नीड होगी हमको ये परसेंटेज का, बट स्टिल समझना जरूरी है क्यों निकाल रहे हैं, राइट। ओके, सो बजट के अकॉर्डिंग हम लोग ने डिसाइड किया 5600 सेल करेंगे, जिसमें फुल 3600 विच इज इक्वल टू 64% एंड मिनी वॉलेट 2000 जो हमारा 36% इक्वल है। बट एक्चुअल में हमने सेल किया 7980 विच इज मोर देन द बजट, बट प्रपोर्शन चेंज कर दिया हम लोग ने। यहाँ पे हम लोग ने फुल को 50% और वैलिड मिनी को भी 50% रखा, हालांकि इट वाज डिसाइडेड 64% होना चाहिए था। ऑलराइट, अब एक्स मिक्स निकालने के लिए ना व्हाट वी नीड टू डू इज हम लोग को ये प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा परसेंटेज, और इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल सेल्स विच इज 7980। ठीक है, ठीक है, ये इतना आएगा। अब आप डायरेक्टली करके दिखा दो यहाँ पे, अथवा ऐसे आप वर्किंग करके भी दिखा सकते हो बेस्ड ऑन कि आपका टाइम कैसे है। ठीक है, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, यू कैन डू दिस वॉकिंग। अदरवाइज आप यहीं पे ये चीज कर सकते हो ऐसे, यू कैन सिंपली टेक दिस फिगर, और या फिर ऐसे यहाँ पे कर सकते हो 2000 डिवाइड बाई 5600 इंटू 7980, ऐसे भी करके दिखा सकते हो विच विल बी सेम। ये ऐसे भी सेम आएगा, वैसे भी सेम आएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो ये हमारा सेल्स मिक्स हो गया। अब बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, अगेन ये 3600 हम जो क्वेश्चन में दिया है 2000। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मार्जिन की। हमको क्या, कौन सा क्वेश्चन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन में? मार्जिनल। मार्जिन में क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे छोटा सा इन्होंने यहाँ पे लाइन इंफॉर्मेशन दिया है, इसमें बोल रहे हैं कि बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर बोथ ऑफ द प्रोडक्ट कितना कितना है? फुल के लिए 44%, 44.6% फॉर द फुल एंड 55% फॉर द मिनी। सो दैट मीन्स सेल्स का इतना परसेंट हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो नहीं, ये तो सो कंट्रीब्यूशन आएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इक्वल टू करके सेलिंग प्राइस कितना था फुल के लिए? इट वाज 50 इनटू हमारा कंट्रीब्यूशन 44.6%। ठीक है, एंड अगेन इनटू कर देंगे, पहले 4000 था। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करते हैं, सब समझाऊंगी, हैव पेशेंस। सेलिंग प्राइस फॉर हमारा मिनी कितना है? 30 में कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 55%। ठीक है, अगेन इनटू दिस वन। जस्ट अ सेकेंड, मैं समझाऊंगी, एक बार कैलकुलेशन खत्म होने दो, मैं सब समझाऊंगी। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मार्जिन चाहिए था हमको, यहाँ पे सेम चीज कॉपी पेस्ट। ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये वाला, आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। इफ यू वांट दिस एक्सेल, मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। अब हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस, ये वॉल्यूम ए माइनस बी। और मिक्स वेरिएंस में हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड वन डिफरेंस, इसमें हमारा दिस माइनस दिस। ठीक है, सो क्वेश्चन में हालांकि ये दो चीज पूछ रहे हैं, मैं बोल्ड कर देती हूँ। ओके, सो ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये एडवर्स, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट्स फेवरेबल। ऑलराइट, सो वी आर डन। अब समझते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके अकॉर्डिंग।
ये तो नहीं पूछा हुआ था. Let me hide this one and I will add the few things. Just a second. Okay. So it look nice now. अब वापस से आ रही हूँ कैलकुलेशन समझाने पे. जस्ट हैव ए पेशेंस. ओके फाइन. सो हम लोग ने किया क्या, अब वापस से समझते हैं एक बार और. ठीक है. क्वेश्चन ने पूछा हुआ था हम लोग को क्या निकालने के लिए. दे आस्क्ड अस टू कैलकुलेट सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस. सेल्स मिक्स कैसे निकालते हैं. सेल्स मिक्स हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड का डिफरेंस है सेल्स मिक्स. तो स्टैंडर्ड मार्जिन मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन. वो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, राइट. सो दैट मीन्स ये हमारा मार्जिन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. ओके. सो एंड वो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे. सो दे हैव प्रोवाइडेड अ CS रेशियो, कितना कितना परसेंट, एंड ऑल्सो वी हैव ए सेलिंग प्राइस. उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो वही चीज मैंने किया. सेलिंग प्राइस कितना है 50 एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर द फुल वैलेट्स, इट्स 44.6%. सो 50 into 44.6% हमारा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. AQ सोल्ड मतलब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है फॉर फुल वैलेट इट्स 4000. ठीक है, ये भी डन. Similarly, for the mini one, they have provided us the selling price of 30, and again they provide the contribution to sales ratio, which is 55%, right? And actual quantity sold is given the question 3980. ये करने के बाद हमारा टोटल वैल्यू आया 154870. ओके. अगेन स्टैंडर्ड मार्जिन का पार्ट समझ में आ गया होगा, राइट. अब आप बात करते हैं सेल्स मिक्स की. सेल्स मिक्स में मैंने क्या किया है ना, इसको मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से. सेल्स मिक्स में क्या किया है ना, हमारा बजट के अकॉर्डिंग फुल कितना बेचना था इन परसेंटेज निकालना होगा. वो कैसे निकलेगा, 3600 डिवाइड बाई 5600 टोटल बजट. टोटल बजट फिगर विच इज 5600, ये दोनों को ऐड करके आया. एंड यस वी हैव टू मल्टीप्लाई अगेन विद द एक्चुअल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी वी सेल विच इज 7980. ये दोनों का टोटल. ठीक है, एक्चुअल फिगर का. सो 7980. ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड मिक्स. वो कैसे निकाला, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द ईच प्रोडक्ट इन द टोटल सेल्स वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाइंग विद द एक्चुअल क्वांटिटी वी हैव सोल्ड. ठीक है. ओके, देन अगेन इस केस में भी यही होगा सेम. तो यहाँ पे फर्क क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे 3600 की जगह वी विल टेक द 2000 divided by 5600 and again multiply it by 7980. सेम चीजें जो ऊपर किया, बस हम फिगर चेंज हुआ सेलिंग प्राइस का एंड ये परसेंटेज का. सो बेसिकली सेल्स मिक्स मतलब हमारा जो बजटेड क्वांटिटी दिया हुआ है सेल करने का, उस टोटल में फुल का कितना परसेंट, मिनी का कितना परसेंट, और उस परसेंट को हम लोग टोटल क्वांटिटी जो जितना सेल किया उससे मल्टीप्लाई करना है, राइट. ये पार्ट भी डन. नाउ बजटेड क्वांटिटी सोल्ड इनटू द स्टैंडर्ड मार्जिन. स्टैंडर्ड मार्जिन का पार्ट आई नो सबको क्लियर होगा. बजटेड क्वांटिटी सोल्ड ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वहां से मैंने लिया. अब ये करने के बाद हम लोगों ने टोटल में फिगर निकाला. ठीक है, सबका. एंड क्वेश्चन ने आस्क किया था सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस. वो ये दोनों को माइनस करके आएगा जो कि नेगेटिव है, एंड नेगेटिव मींस एडवर्स. एंड ये सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस C - B करने पे आएगा
दैट इज द सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस, जो कि पॉजिटिव है विच मीन्स फेवरेबल. सो ये हम लोग ने 8 मार्क का टोटल कैलकुलेशन कर लिया. इट्स क्वाइट सिंपल. ये भी अब नहीं करोगे चलेगा, इतना ही प्रेजेंट कर दो. इट्स वेरी क्लियर, एग्जामिनर को भी इजी होगा मार्क करने में. अच्छे से किया है हम लोग ने. ओके ओके ठीक है. सो ये पार्ट आई होप सबको, ये जहाँ पे कैलकुलेशन का दिक्कत था क्या था, अब समझ में आ चुका होगा, राइट? ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्या क्वेश्चन ने पूछा, ब्रीफली डिस्क्राइब द सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस. इट्स फॉर द 2 marks. So if we talk about what is the sales mix contribution variance, sales mix is basically difference है किसका, actual quantity sold in the actual mix and actual quantity sold in the standard mix. ठीक है. So हम लोग ने actual कितना कितना proportion sell किया वो, and standard mix के according कितना कितना sell किया वो, है ना. So you can write like this: sales mix variance is based on the, or it's a difference between the difference in the sales volume as a result of change in the proportion of each product sold, not the sales revenue, right? The proportion of sales revenue can be stay the same, but this can hide the changes in the volume of unit sold. ऐसे करके कुछ लिख सकते हो आप अगर लिखना होगा तो. लेट मी राइट इट डाउन. All right. So it is difference between actual quantity sold in actual mix and actual quantity sold in standard mix. ठीक है. तो ये क्या इंडिकेट करता है? सो it measures the impact, it measures the impact on profit due to changes in mix of actual sales from standard mix. That's sufficient for the 2 marks. It's for the 1 marks. Other part we need to describe. Okay. Okay, now it's visible, right? This is requirement 2. Okay. Then next we have a sales quantity variance, right? I will copy and paste this and change the few things. This one is sales quantity. Okay, one more thing. The question has said contribution, right? Sales mix contribution. Also impact the contribution. ठीक है यहाँ तक? Okay, so it's the difference between, if we talk about the sales quantity, actual quantity sold and budgeted quantity sold, right? Let me remove this and write it in clear way. Okay. So it's the difference between actual sales volume
in standard mix and budgeted sales volume. Okay, is value at standard contribution per unit. So it measures the impact on profit or contribution due to selling different total quantity as compared to budgeted total quantity. That's it. For 2 marks. It's sufficient. Okay? Okay. Now next part is what the next requirement is saying. So discuss the sales performance of the business for the period, taking into account your calculation from the part A and the information provided in the scenarios. See, this kind of question आपको कोई भी थ्योरी पोर्शन में नहीं मिलेगा, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा सिनेरियो देख के कि बिजनेस ने सेल्स में कैसा परफॉर्म किया, है ना. अब सेल्स में अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैनेजर को भी बोनस उसी अकॉर्डिंग मिलेगा ना, राइट. अगर बुरा परफॉर्म किया तो मैनेजर को पनिशमेंट भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा. सो शुरू से देखते हैं हम लोग. हालांकि अब यहाँ पे शुरू में उन्होंने क्या बोला था कि कंट्री ग्लोबल क्राइसिस फेस कर रही है. सो ग्लोबल क्राइसिस में क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट का होगा डिमांड कम होगा. डिमांड कम हुआ तो क्या होगा, हमारा कम बेचेंगे, कम क्वांटिटी सेल होगा. कम क्वांटिटी सेल होगा तो रेवेन्यू कम आएगा. रेवेन्यू कम आएगा तो मैनेजर का परफॉर्म ये हमारा वेरिएंस भी क्या आएगा, एडवर्स आएगा एज कंपेयर टू बजट. बट हमारे केस में क्या हुआ है ना, हमारे केस में 2 कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा क्वांटिटी वेरिएंस इज फेवरेबल, मतलब हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया है. एंड इसका रीजन क्या हो सकता है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि एक कंपटीटर तो आउट ऑफ द मार्केट हो गया, उसके वजह से वहां उनका कस्टमर हो सकता है हमारे और शिफ्ट हो गए होंगे. नेक्स्ट रीजन इट कुड बी कि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अब जो बंदा 3 साल में कार को रिप्लेस करता था अब वो 5 साल में कर रहा है. इट मीन्स दे आर मोर फोकस्ड टू रिपेयर एंड मेंटेन देयर कार. सो क्लीनिंग सर्विसेज का डिमांड क्या हुआ होगा, बड़ा होगा. बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगा, वो भी हो सकता है. ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. एंड वो कैसे लिखेंगे आई विल शो यू इन अ व्हाइल. ठीक है, और हमको क्या बताना पड़ेगा परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग. सो यस, 2 कंपनी सफरिंग फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का वैलिड कंपनी हैज सोल्ड मोर एज कंपेयर टू द बजटेड, जो कि हम लोग का वेरिएबल से देख सकते हैं, राइट. दूसरा सेल्स परफॉर्मेंस कहाँ पे इंपैक्ट आएगा, इन्होंने बजट फिगर को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज नॉट ए लाइक टू लाइक कंपेरिजन. लाइक टू लाइक कंपेरिजन के लिए क्या होता है, बजटेड को हम लोग फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स से कंपेयर करते हैं. अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन कहीं किया था कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ओके, लेट मी शो यू माय आंसर. तो ओके, सो मैंने कैसे स्टार्ट किया, लेट्स सी. अब 2 कैलकुलेशन किया, दोनों को मैंने पार्ट में डिवाइड किया, राइट. एक एडवर्स सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस एंड नेक्स्ट वन इज फेवरेबल सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस. सो हाउ आई स्टार्टेड अवर सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस के लिए जो एडवर्स आया है हमारे केस में. Valid company expected to sell more full valid 64% than the mini valid, which is 36%. As full valid earned more profit, however, the actual sales were closer to 50-50%. This means more customers choose mini valid, the less profitable option, and this shift causes adverse mix variance because the profit margin was reduced due to change in the mix. See, मिक्स वेरिएंस क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग ने 64 एंड 36% सेल करने का सोचा था, बट एक्चुअली हम लोग ने 50-50 सेल किया. ठीक है, सो बजट के अकॉर्डिंग जो फुल वैलिड जो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगी हम लोग को, उसको ज्यादा बेचने का सोचा था, बट एक्चुअल में उसको हम लोग ने कम बेचा. कम बेचेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम जाएगा ना,
है ना, यूनिट क्वांटिटी कम हुआ, जो हायर प्रॉफिट दे रहा है जनरेट करके उसका, तो इससे क्या होगा, हमारा एडवर्स वेरिएंस आएगा। ठीक है, सो ये हम लोग एक रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो मिक्स चेंज हुआ उसके वजह से एडवर्स आया। नेक्स्ट रीजन क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस इन द स्ट्रैप ईयर पीपल हैव 30% लेस disposable income as a result many customers likely to choose the cheaper mini wallet service instead of the full wallet. This economic pressure explains why the sales mix change, reducing the overall profitability. अब sales mix होने का और कारण भी हो सकता है, जैसे कि अब क्वेश्चन में सिनारियो में मेंशन किया हुआ है कि अब जो डिस्पोजल इनकम था इट वाज रिड्यूस्ड बाय 30%, सो पीपल विल अवॉइड बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स, लग्जरी आइटम और एनी एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। अब इसके वजह से क्या होगा, दे विल फोकस और दे विल शिफ्ट टुवर्ड एनी सब्स्टिट्यूट व्हिच इज अवेलेबल चीपर एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। ऐसे करके वो ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे वही हुआ है, मिनी क्या था, सस्ता था फुल वाले से, इसीलिए उन्होंने मिनी ज्यादा चूज किया। मिनी चूज करने पे क्या हुआ, हमारा प्रोपोर्शन वैसे ही डमाडोल हो गया, जो 64 एंड 36 का प्रोपोर्शन होना चाहिए अब 50-50 हो गया। सो ये भी एक रीजन है समहाउ एडवर्स सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा फेवरेबल सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। इसमें मैंने लिखा है, इवन द मिक्स वाज लेस प्रॉफिटेबल द नंबर ऑफ वैलेट सोल्ड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, 7980 यूनिट were sold as compared to the budgeted of 5600. सी बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि टोटल हम लोग 5600 बेचेंगे, बट एक्चुअली वी सोल्ड 7980, दैट मीन्स वी हैव परफॉर्म गुड, राइट? Okay, so this increased volume resulted in a favorable quantity variance as a more total contribution were earned than expected. Obviously एक तो हम लोग ने ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड किया, इसके वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो ये भी एक रीजन है फेवरेबल क्वांटिटी वेरिएंस में कंट्रीब्यूशन का। People in Strapia are now keeping their car log on 5 years instead of 3 years due to the financial constraint. This makes them more willing to maintain and clean their car regularly, leading to the higher demand for valeting services. जैसे कि मैंने बोला, obviously अब कम एक कंट्री में ही ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, सो पीपल विल अवॉइड बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स, अपने पैसे को बचाने की खोजें सोचेंगे। वैसे कार में क्या हुआ है, जो कार 5 इयर्स में रिप्लेस 3 इयर्स में रिप्लेस होना चाहिए था, अब वो 5 इयर्स में रिप्लेस हो रहा है। सो उससे क्या होगा, पीपल 5 इयर्स कार में फोकस करेंगे मेंटेन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, इसका डिमांड बढ़ेगा क्लीनिंग का। तो उसी वजह से हो सकता है कि क्वांटिटी ज्यादा सेल हुआ है, उसी वजह से फेवरेबल आया। नाउ नेक्स्ट, same trend shows that car repair are increasing in Strapia. This support the idea that car owners are trying to take better care of their vehicles, which also contribute to increased demand for valeting service like those offered with valet company. So it's very clear, जो sentence में बोला था scenario में वो pick करके मैंने explain किया है. Now the last one is one of the valet company local competitor closed due to the fire, reducing the competition. This likely helped valet company to attract new customer, contributing the further to increase in total quantity sold and the favorable quantity variance, जो कि मैंने उस टाइम बोला। So this is how you can solve the question like this. I hope now you are clear with the things. So यहाँ पे उन्होंने sales performance business का डिस्कस करने की बोला था, based on the part A जो कैलकुलेशन किया वो यूज करके और इंफॉर्मेशन यूज करके। So ऐसे आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो सिनारियो को यूज करके, अपना कैलकुलेशन यूज करके, टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।